ওয়েল, যেরকম কথা দেওয়া ছিল যে বিকেল 5টায় আমরা আবার লাইভে আসবো, আর ঠিক তাই আজকে লাইভ শুধু নয়, লাইভের আড্ডার কনসেপ্টটা ভীষণ আলাদা, কারণ আজকে আপনার সঙ্গে একজন রিক্সাওয়ালাকে আলাপ করবো। ওয়েল, হঠাৎ করে ভাবছি তো रिक्शावाला कहाँ से आ गया भाई ये बंदा। रिक्शावाला ये कोई भी नजर नहीं आ रहा यहाँ, तो भाई है একটু পরেই নজর আসবে সবাই কে রিক্সাওয়ালা, কেন রিক্সাওয়ালা। তো সব মিলিয়ে মিশে ইটস বেটার টু সে যে কালকে রিক্সাওয়ালা আসছে আপনার বাড়িতে, কিভাবে আসছে বেল সেটা বলবে রামদা। এন্ড বিফোর দ্যাট একটু আমরা আলাপটা করে ফেলি। আজকে আমাদের সঙ্গে আমাদের স্পেশাল দুজন গেস্ট রয়েছে, অবিনাশ দ্বিবেদী রয়েছে, এদিকে রামকমল মুখার্জি। অবিনাশ দ্বিবেদী হচ্ছে রিক্সাওয়ালার হিরো, দি মেইন প্রোটাগনিস্ট, আর রামদা হচ্ছে যে ফিল্ম মেকার, ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ। আর এই সবকিছু মিলেমিশে গুছিয়ে একটু কিছুক্ষণ অব্দি আড্ডা হবে, এন্ড অফকোর্স আপনাদেরকে তো চাই সঙ্গেই। আর ওয়েলকাম অবিনাশ, ওয়েলকাম রামদা, ওয়েলকাম টু বি স্পট ইউ, দি ভার্চুয়াল ইন্টারাকশন অনলি অন ফেসবুক। Thank you Thank you so so much. much. Thank Thank you. you so much. So nice to see you after a long gap, Arunabha. ট্রুলি সুপার এক্সাইটেড টু মিট ইউ অ্যাজ ওয়েল, কারণ এরকম ভাবে জেনারেলি তো হয় না কথা, আমাদের সামনাসামনি কথা হয়, এরকম ভাবে ভার্চুয়ালি হবে ইটস লাইক নেভার থট অফ। বাট এনিওয়ে, Yes, হ্যাভ টু কোপ আপ এরকম ভাবে। সো হাউ আর ইউ অবিনাশ? I'm good. It's I'm good, almost, Arnav. How are you? I'm oh, I'm absolutely fine. So every day it's a 5 बजे हर रोज ये सेलिब्रिटी लाइव्स, ये सारे इंटरव्यूज, ये तो चल रहा है, घर से काम चल रहा है, यही सब कुछ है। और ऊपर से रामदा है, आप हो, तो फिर आज तो दबा के मस्ती होगी आई एम श्योर। 5 बजे से 5:30, 5:40 तक काफी देर लेकिन तक ये मस्ती। चेहरे पे इतने ग्लो की वजह क्या है? इसका कारण जान सकता हूँ? ये ग्लो कौन से कैसे आता है? जितना आपके चेहरे पे ग्लो है। ये मैं मेरा भी बालकनी में सवाल है। ये मेरा भी सवाल है। ये मैं कौन सा मैं कैमरा, कौन सा लाइट है? हाँ। कोई कोई कैमरा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, मैं सिर्फ अपने बालकनी में बैठा हूँ, जो आपको दिख रहा है ये शीशे है दरवाजे के, और मैं बालकनी में बैठा हूँ, बाहर से बस वो लाइट आ रही है और कुछ नहीं है। और जीरो। अविनाश, दादा अविनाश। वो बाल उड़ने का इफेक्ट भी है, धक धक करने लगा टाइप से, जो बाल उड़ते हैं ना फैन से। हाँ, और अविनाश, हम लोग अगली बार इसकी खिड़की के बाहर ही शूटिंग करेंगे जाके। हाँ हाँ हाँ। हाँ, लाइट अच्छा है इसका। कुछ भी रामदा प्लीज, अब अभी कुछ अविनाश भी। ने बोला ना, मैंने नहीं बोला। आप बोलोगे तो मैं आपकी टांग खिंचाई नहीं करता। अविनाश ने पूछा, ये मैं कब से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा लाइट कितना अच्छा है, कि तुम हाँ, ग्लो कैसे कर लेते हो। कुछ भी। और अविनाश, कैसा रहा वो फिर रिक्शा वाला का सफर, बताओ रिक, जरा हम भी। रिक्शा वाला का सफर बहुत ही अच्छा रहा, और जब से शुरू हुआ है तब से अब तक अच्छा ही जा रहा है। और हाँ ऐसा लग रहा है कि अब ये रिक्शा वाला का सफर खत्म ना हो, मतलब जैसे चल रहा है। लेकिन अब कल फिल्म रिलीज हो जाएगी और सबके सामने आ जाएगी, और एक तरह से मतलब हम लोग जर्नी से आगे बढ़ जाएंगे इससे। लेकिन ये जो सफर था, शुरुआत से जब से दादा ने मुझे आ, कहा ये रोल करने के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तब से लेके आज तक हर दिन रिक्शा वाला हमें एक नई खुशी देती है, तब से लेके आज तक। हाँ, एक बार आप रामदा से काम कर लिए ना, रामदा के साथ वो चस्का चढ़ी जाता है, बस वो कभी रंग उतरता नहीं है। ऐसा हो कि मतलब दूसरी तीसरी चौथी फिल्म आए और बस रामदा ही बने डायरेक्टर, ऐसा होता है। On a serious note, Arunabh, he's such a brilliant actor, এত ভালো অভিনেতা যে আমি মানে যখনই যেটা লিখি, যখনই কিছু ফার্স্ট লিখি বা ফার্স্ট কিছু একটা প্ল্যান করি, আর যদি আমার মনে হয় যে সেখানে কোনো মেল ক্যারেক্টার আছে, আই অলওয়েজ থিঙ্ক অফ অবিনাশ। And because it is not just he loves to work with me, it is a two-way process, because even a director would also look forward to work with an actor, like আমার সঙ্গে যারা কাজ করেছে, ঈশা দিওল বা সারিনা জেটলি, লিলিত দুবে, আজার খান, তরুণ মালহোত্রা, they're all very close to me and they all want to work with me and I also want to work with them. But with Avinash, we both have created a kind of a chemistry that, every time there is a good role, I would always think of him purely because of an actor. Because I थैंक यू have सो मच seen दादा। his level of dedication in the film, in Rickshawala. And kalke release ho jabe, you can also watch it, and I'm sure you'll have a same opinion. And we are very blessed that, the film has been reviewed in Bombay and it is getting, 3.5, 4-star rating everywhere. So I am really, really, really overwhelmed that, the film is being blessed by also the reviewers, क्योंकि वो लोग बहुत क्रिटिकल होते हैं और उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आज की तारीख में ओटीटी में हर
हर दिन 2-3 फिल्में रिलीज होती हैं अगर सारे ओटीटी को एक एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म में लिया जाए तो। इतने सारे फिल्में रिलीज हो रही है, उसके बीच में हमारा रिक्शा वाला भी आ रहा है और उसको भी इतना प्यार मिल रहा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड माय टीम एंड स्पेशली अविनाश। थैंक यू सो अच्छा मच दादा। रामदा, एक सवाल है। अविनाश, मैं तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ। रामदा से एक सवाल है कि इतना हैंडसम रिक्शा वाला कहाँ से ढूंढा आपने सर? ये जरा कहानी हमें इसके बताइए। लिए मुझे बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा अरुणव, क्योंकि जी हाँ, मतलब ही इज हैंडसम डेफिनेटली एंड ही इज अ गुड लुकिंग मैन, देयर इज नो डिनाइंग टू दैट। वो तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, इसमें इनके माताजी पिताजी का क्रेडिट है और भगवान का क्रेडिट है। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे फिल्म का जो किरदार है मनोज, वो एक्चुअली रिक्शा वाला नहीं है। ये लोग जब फिल्म देखेंगे तो उनको समझ में आएगी कि वो रिक्शा वाला नहीं है। तो चूंकि वो एक कॉलेज में पढ़ता हुआ एक यंग लड़का है जिसके आंखों में सपना है अपने भविष्य को, अपनी जिंदगी को और बेहतर करने का। जैसे जीना है, तो हाँ। वो आप जैसा, हम जैसे और बाकी जैसे यंगस्टर्स होते हैं, वैसे ही वो है। वो और दूसरों से अलग नहीं है। अगर उसका फिगर अच्छा है या अगर उसकी हाइट अच्छी है या अगर वो खूबसूरत दिख रहा है तो ये इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि वो रिक्शा वाला है नहीं। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता हूँ ये कह के कि रिक्शा वाला होने से आप खूबसूरत नहीं हो सकते या आप बेहतर नहीं हो सकते। दैट इज रॉन्ग वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। बट एक टिपिकल सोच होती है कि अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर है तो ऐसा है, हलवाई है तो ऐसा है, रिक्शा वाला है तो ऐसा है। एक जॉब के साथ एक स्पेसिफिकेशन आ जाता है, डॉक्टर है तो ऐसा होगा। वो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिकेशन जो है वो मैं तोड़ना भी चाहता था। तो इसीलिए जब मैंने कास्टिंग किया तो कोलकाता से बहुत सारे एक्टर्स ने ऑडिशंस भी भेजे। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें से काफी नामचीन एक्टर्स भी थे। तो मुझे या तो एक्टर्स मिल रहे थे या बॉडी बिल्डर्स मिल रहे थे, बट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग एंड फिजिक वो मुझे नहीं मिल रहा था। जो अचानक से मैं कहूँ कि एक्चुअली हम लोग एक दोस्त के जन्मदिन पे दोनों मिले, कॉमन फ्रेंड है वो। तो उनके जन्मदिन पे मिलने के बाद एक्चुअली हम लोग मिले भी नहीं। अविनाश कोने में खड़ा था और वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था और मैं सोफे में बैठ के एंजॉय कर रहा था पार्टी एंड सडनली माय आई मेट हिज फेस। और जैसे मैंने उनका फेस देखा और मैं बैठे बैठे ही मैं, और तभी मैं बहुत निराश भी था अरुणव। उसके पहले ना मैंने बहुत हंट किया और मुझे कोई नहीं मिला। तो मैंने एक्चुअली डिसाइड किया था कि रिक्शा वाला मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि ओके। केक वॉक और सीजन रीडिंग के बाद सब लोग मुझे बोल रहे थे कि बांग्ला একটা ছবি করুন, বাংলা একটা ভালো ছবি, আপনি বাঙালি আপনি কেন বাংলায় ফিল্ম করবেন না, এরকম ধরনের প্রেশার কনস্ট্যান্টলি আসছিল। তো আমি তখন বাংলায় ছবি করার জন্য আই সিলেক্টেড আ সাবজেক্ট व्हिच नीड्स द लैंग्वेज बांग्ला। सो ये सब हम्म। करने के बाद बाकी कास्ट भी मेरा मोटा मोटी बैठ गया था। जो संगीता, कस्तूरी, विश्वजीत, ऑल, आई मीन आई वाज हैप्पी विद एवरी ऑफ देम, बट आई वाज जस्ट नॉट गेटिंग द रिक्शा वाला। तो तभी जब वो खड़ा था और वो ऑब्वियसली बर्थडे पार्टी में आया था तो डैपर था, वो पूरा सूट बूटेड था, सूटेड बूटेड था। फिर भी मैंने उसके आंखों में कुछ देखा जो मैंने हिम्मत करके जाके खुद ब खुद मैंने सामने से जाके उनको पूछा कि क्या आप एक्टिंग करना चाहते हो, क्या आप एक्टर हो। उन्होंने फिर हाँ कहा कि हाँ मैं एक्टिंग में दिलचस्पी रखता हूँ और मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। और मैंने पास में कुछ काम किए हैं और तब जाके मैंने उनको एक वन लाइनर सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर दूसरे दिन वो मुझे मिले और नरेशन दिया और उनको भी अच्छा लगा और ही ऑल्सो contributed a lot in after hearing the story and then एक तालमेल बैठ गया और फिर वो कलकत्ता आए और करीब एक हफ्ते से उन्होंने प्रैक्टिस किया मेरे एसोसिएट के साथ। जो फिल्में थे, रिक्शा खींचना, नंगे पैर चलना, उस हिसाब से इन्होंने अपना डाइटिंग, अपना वर्कआउट्स, अपना शेड्यूल, सब कुछ उस हिसाब से चेंज किया। मैंने उनको जो बेसिक जो साधन होता है एक एक्टर का, जो लग्जरी हम नहीं बोलते आज की तारीख में, वैनिटी वैन इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको बाथरूम जाना है या फ्रेश अप होना है या धूप बारिश है तो आपको कहाँ रुकना है, ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट। वो भी हम प्रोवाइड नहीं कर पाए। हम उनको पहले ही बोले थे कि ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉजिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं था ना, क्योंकि हम लोग
नॉर्थ कैलकाटा, बड़ा बाजार, कुमारटुली, ये सब जगह में शूटिंग कर रहे थे। और एग्जैक्टली। गलियां चेंज हो रही थी और एड्रेसेस चेंज हो रहे थे, बात मतलब हर आधा घंटा 1 घंटे में। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं वैनिटी वैन को ये गली से लेके उस गली में, वो उस गली से लेके उस गली में लेके जाऊँ। और आप कलकत्ता के हो तो आप जानते भी हो कि कलकत्ता की गलियां कितनी छोटी होती है। वहां पे कहाँ एग्जैक्टली। पिकअप में खड़ा होगा और वहां पे कहाँ जनरेटर लगाएंगे। तो ये बेचारे मतलब ही कंट्रोल्ड हिज नेचर्स कॉल. He sat under, shades when it was raining. He didn't have anything. The only basic thing he had was one umbrella and a spot boy. और कुछ नहीं इनको था, बट इनको देखने लायक था कि इनके चेहरे पे एक रौनक और एक खुशी थी कि वो ये रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी खुशी देख के, उनका स्माइल देख के हम लोग भी उतना एनर्जेटिक होके हम लोग काम करते थे। अगर ये क्रिप करते, ये अगर बदसलूकी करते, ये अगर टैंट्रम्स थ्रो करते, तो शायद ये फिल्म जैसे आज बनी है ये ऐसे नहीं बनता। तो ये हमेशा मैं श्रेय इस अभिनेता को देता हूँ जो इन्होंने उसका वैल्यू किया और समझा और कोऑपरेट किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रूली। और अविनाश, कैसा था सफर, मतलब रामदा के साथ, और वो कदर काम, और वो भी कोलकाता की गलियों में, जहाँ जैसे रामदा ने कहा कि वैनिटी वैन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, धूप है, सिर्फ छतरी और स्पॉट बॉय, और ये कैरेक्टर, दो सवाल है, और ये कैरेक्टर के साथ खुद को कैसे तालमेल, मतलब वो होता है ना, मतलब अंडर द स्किन जाना, पोर्ट्रे द रियल रिक्शा वाला। वाज इट वेरी इजी और लाइक हाउ, ये कहानी जरा बताओ आप। एक्चुअली इसका I think you got हाँ disconnected. He's come. हाँ हाँ हाँ, he will join. অ্যাকচুয়ালি এগুলো হচ্ছে, টেকনিক্যাল কিছু গ্লিচেস হয়েই যাচ্ছে এখন রেগুলার বেসিসে, সবাই তো বাড়ি থেকে লাইভ করছে, হ্যাঁ, প্রমোশনস চলছে। কেটে গেছে। Sharbani, Avinash, you have to figure out. He's gone out. There's some technical problem. Yeah, we can continue. He will join. So Yes, হ্যাঁ, basically, মানে এত রামদা, কয়েকজন মানুষ আমাদের সঙ্গে অলরেডি জুড়ে গিয়েছেন, একটু হাই হ্যালো ওরা করেছে আমাদের সকলকে। একটু তুমি তোমার মতন একটু তুমি রিপ্লাইজ গুলো দিয়ে দাও, কেমন? আমাকে বল, আমি কোনো প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি না। তাদের হ্যাঁ সবাইকে হ্যাঁ, আমার আমি নমস্কার। রিড আউট করছি, আমার ইউ জাস্ট লিসেন। হ্যাঁ, শোভা সরকার বলছে, কেমন আছো সবাই? খুব ভালো আছি। লকডাউনের মধ্যে বাড়ির মধ্যে গৃহবন্দী হয়ে মানে এরকম ধরনের একটা মানে আনওয়ান্টেড টর্চার, যেটা আমাদের সবাইকে বাড়িতেই থাকতে হবে, এটা মানে বিয়ন্ড কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। বাট দ্যার ইজ নো আদার ওয়ে। আই মিন, সবাইকে সুস্থ থাকতে হবে, ভালো থাকতে হবে, তাই জন্য বাড়িতে থাকতে হবে, এটা মেনে নিয়েছি আমরা। আচ্ছা, ইন্দ্রাণী দাসও সেম প্রশ্ন করছে, কেমন আছো? আহ উম, সাথী বলছে, দা ভাইরা কেমন আছো? আহ আচ্ছা, ওই একই প্রশ্ন তুমি সকলকে বলে দাও কেমন আছো। ছবিটা আমি নিয়ে ভালো প্লিজ। আছি, আমি সবসময় ভালো থাকি যখন আমি অরুণাবর সঙ্গে কোনো ইন্টারভিউ করি। আচ্ছা, ও ব্যাক স্টেজে দেখাচ্ছে, অরুণাব ওকে ব্যাক স্টেজে দেখাচ্ছে, ব্যাক স্টেজ থেকে ফ্রন্ট স্টেজে নাও। ও অবিনাশ ব্যাক স্টেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাইন, ও করে দেবে, যে আছে টেকনিক্যাল। টেকনিক্যাল টিম উইল ডু ইট। তো সো তোমার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সবসময় ভালোই থাকি আমি, কারণ তুমি নিজে এত পজিটিভ একটা মানুষ। যখন পজিটিভ মানুষের সঙ্গে কেউ কথা বলে তখন নিজেই পজিটিভ অটোমেটিক্যালি তুমি হয়ে যাবে। And your smile is very infectious. I've always said that. So whenever you smile, মানুষের সব দুঃখ কষ্ট চলে যায় তোমার ওরে হাসিটা দেখে। বাবা, কি বলছো রামদা! But it's a fact. It's a fact. Is he ওকে, there? শোভা সরকার বলছে, কেমন আছো অরুণাবদা? খুব ভালো আছি শোভা, খুব ভালো লাগছে তুমি রেগুলার বেসিসে আমাদের লাইভ দেখো। অ্যান্ড আজকেও কিন্তু রয়েছে। অ্যান্ড ইয়েস, যারা যারা আমাদের সঙ্গে অলরেডি জুড়ে গিয়েছেন বলে দিই যে কালকে রিক্সাওয়ালা আসছে, বিগ ব্যাং অ্যাপটি ডাউনলোড করুন অ্যান্ড দেখুন রিক্সাওয়ালা। রিভিউজ, লাইক, শেয়ার, কমেন্টস, ডু ডু ডু, খুব দরকার। ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্ট, বুঝতেই পারছেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্ট যদি সাপোর্ট না করেন তাহলে কেউ এগোতে পারবে না। ইউ জাস্ট ডু দিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্ট। অ্যান্ড অফকোর্স ছবি নিয়ে কি প্রশ্ন আছে সেগুলো প্লিজ শুট করো। হাই হ্যালো তো চলবেই, চলবে, বাট ইয়েস, ছবি নিয়ে কি প্রশ্ন আছে, রিক্সাওয়ালার নিয়ে, রিক্সাওয়ালার পিছনের গল্প নিয়ে,
রিক্সাওয়ালা কেন, সবকিছু নিয়ে গল্প সেগুলো তো চলছেই। অ্যান্ড আপনার যা যা মনে রয়েছে সেগুলো সব প্রশ্ন করতে পারো। অ্যান্ড রামদা, তুমি রিক্সাওয়ালা এরকম গল্পটা বাঁচলে কেন? রামদা যখন, যে রামদার সঙ্গে কথাগুলো সেরে ফেলি, রিক্সাওয়ালা তুমি বাঁচলে কেন এরকম গল্প একটা? রিক্সাওয়ালা গল্পটা কেন বাঁচলাম? বাঁচলাম এই জন্যই কি, দেখো ছোটবেলা থেকে না আমি 1 মিনিট দাঁড়াতে অ্যাডজাস্ট করি। হুম। ছোটবেলা থেকে আমি নর্থ ক্যালকাটায় বড় হয়েছি, মানুষ হয়েছি। আর ওইখানে রিক্সাওয়ালাদের অনেক বেশি আহ, আহ, দেখা যায়। আর হ্যাঁ। আমি স্কুল থেকে ফিরতাম হাতে টানা রিক্সায়, স্কুলে যেতাম অনেক সময় হয়তো হাতে টানা রিক্সায়। তো তাদের সঙ্গে একটা কথা বলা, তাদের জীবনযাপনটা জানা, তাদের কাছ থেকে দেখা, এইগুলো খুব ছিল। মানে সেটা আঁকার স্কুলে যাওয়া হোক বা টিউশনে যাওয়া হোক বা স্কুলে যাওয়া হোক বা কাছাকাছি কোথাও যাওয়া হোক বা এমনকি কালী মন্দিরে, ছনছনিয়া কালী মন্দির যেতে গেলে রিক্সা করেই যেতে হতো। তো ওইরকম ধরনের এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমার ছিল, আমি যখন বাংলা ছবি বানাতে আহ, বানাবো ভাবলাম, আমি এটাই ভাবলাম যে কি বিষয় নিয়ে কলকাতায় বাঙালিরা সিনেমা করেনি বা করছে না, সেটা হচ্ছে রিক্সাওয়ালা। কারণ আমরা যদি দেখি, বিমল রয়ের দো বিঘা জমিন হিন্দি ছবি, যেটা বলরাজ সাহানি অভিনয় হুম, করেছিলেন, হুম, তারপরে হুম। রলেন ড্রপের সিটি অফ জয়, যেটাতে ওমপুরি রিক্সাওয়ালা প্লে করেছিলেন, এই দুজন অভিনেতা ছাড়া বাংলা সিনেমায় আহ পুরোপুরি যদি দেখতে হয়, বাংলা সিনেমায় কিন্তু কেউ রিক্সাওয়ালা প্লে করে। মানে আহ মূল স্রোতে ধারা হয়নি, আবার আর্ট ফিল্মও হয়নি, আবার মিডল স্ট্রিমও হয়নি। মানে এমন না যে সত্যজিৎ রায় করেননি বলে অগ্রদূত করেছেন, বা অগ্রদূত করেননি বলে তরুণ মজুমদার করেছেন। এরা কিন্তু কেউই রিক্সাওয়ালার উপরে কোনো চরিত্র ভেবে কখনো করেননি। এমনকি বাংলা সিনেমার যারা আহ ভালো অভিনেতা বা যারা প্রথম সারির অভিনেতা, তারাও কখনো রিক্সাওয়ালার চরিত্র প্লে করার আগ্রহ দেখায়নি। ওকে। মানে তারা হয়তো মোস্টলি কলেজ স্টুডেন্ট প্লে করছে, বা ডক্টর, পুলিশ, এরম ধরনের চরিত্র, তারা উকিল, এরম ধরনের চরিত্র বেশি তাদের দেখা গেছে। কিন্তু অন্য চরিত্রে বা একটা রিক্সাওয়ালা, হাতে টানা রিক্সাওয়ালা চরিত্র, বা তার দুঃখ, তার কষ্ট, তার জীবন, সেটা নিয়ে কখনো কেউই ভাবেনি। কেন ভাবেনি আমি জানি না। মানে আমার এখন মনে হয় যে ভালো হয়েছে যে ভাবিনি, আমি ভাবার সুযোগটা পেয়েছি এবং আমি করার সুযোগটা পেয়েছি। তো আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুল দ্যাট এটা বাংলা সিনেমা হিসেবে প্রথম কোনো একটা হাতে টানা রিক্সাওয়ালার উপরে কোনো পূর্ণ একটা সম্পূর্ণ একটা সিনেমা। রাইট। এটা ঠিক। কারণ রিক্সাওয়ালা নিয়ে সেরকম ভাবে কোনো ছবি নেই, এন্ড এটা ফুল লেন্থ, মানে ফুল লেন্থ, ফুল হেড টু টু যদি আমি বলি পুরোটা রিক্সাওয়ালা অলমোস্ট তার বলতে পারো, দেখো এখন 1 ঘন্টার সিনেমা আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি হিসেবেই ধরা হয়। এটা 50 মিনিটের ছবি। হুম। মানি বা অন্যান্য যেগুলো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র আছে, সেখানে রিক্সাওয়ালা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি হিসেবেই মানে গ্রহণ গণ্য করা হয়েছে। হয়েছে তাকে, বা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, নমিনেটেড হয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ, মানে ওই 50 থেকে 60 মিনিট হয়ে গেলে ওটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিনেমা এখন, মানে সেই হিসেবে ধরা হয়। ओके। अविनाश वेलकम। कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़ के? अरे मैं बैक स्टेज चला गया था चेंज करने, ये दिखा रहा था यू आर बैक स्टेज। ओह, चलो एटलीस्ट इन्होंने तो आपको दिया मेकअप वैन वैनिटी बैक स्टेज में। हाँ हाँ, मेरे लिए ग्रीन रूम था यहाँ पे। चलो, सही है। और सुनाओ अविनाश, हम कहाँ थे, क्या पूछ रहे थे आप, हम आपसे, मतलब कैसा आ, था फिर वो हाँ, गलियों में ये वो सारी। इस सफर का मैं पूरा क्रेडिट दादा को ही दूंगा, बिकॉज ये कहानी दादा से ही शुरू हुई थी और सबको दादा ने एक एक करके जोड़ा था। और मैं बिल्कुल मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी इमोशनल कहानी और एक ऐसा किरदार जिसमें मुझे मेंटली भी खुद को चैलेंज करना पड़ेगा और फिजिकली भी खुद को चैलेंज करना पड़ेगा कि ये मैं कैसे निभाऊंगा। रिक्शा खींचना है, बंगाली बोलनी है और उसके साथ इमोशन भी करेक्ट आने चाहिए। तो हाँ। इसमें दादा ने मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने अपने साथ रीडिंग में बिठाया। और चाहते तो वो ये कह सकते थे कि हमारे पास 5 दिन का वक्त था शूटिंग का या 7 दिन का, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन बहुत कट टू कट टाइम था हमारे पास। और हम जहाँ शूट कर रहे थे वहां बारिश का प्रॉब्लम था, भीड़ का प्रॉब्लम था। तो दादा कह सकते थे कि यार आप बंगाली मत बोलो, उन्होंने मैं डबिंग करवा लूंगा किसी और से, बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, सेट पे टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी करने से मना नहीं किया, हर चीज की फ्रीडम दी, जिसकी वजह से शायद मैं ऐसा कर पाया।
और आई रिमेम्बर मैं बंगाली जब बोलने का ट्राई कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमें जल्दी किसी भी लैंग्वेज के गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं लैंग्वेज सीखने से पहले, अगर वो अच्छे हों। तो मैं बंगाली गाने सुन सुन के उनको याद करके, ताकि मेरा एक्सेंट करेक्ट हो जाए, डायलेक्ट करेक्ट हो जाए, और मैं दादा को वॉइस नोट भेजता था अपने गंदे गंदे सुर लगा के ना। अच्छा, कोई सुर गंदे का या अच्छे, वो अविनाश, वो गंदे है या अच्छे वो तो हम बताएंगे। मैं हूं ना आज फिलहाल, तो आप मुझे गाना गा के सुनाओ कि क्या गाना आप रिकॉर्ड करके भेजते थे दादा को। जरा आप कुछ सुना दो, बंगला में ही, हिंदी में नहीं, हाँ बंगला। हाँ। रामदा। अब फंस गया ये बोल के। कौन सा गाना था? तुम क्यों टॉर्चर होना चाहते हो? चलो सुनाओ, इनको टॉर्चर किया जाए। टॉर्चर किया जाए, मैं एक बार गाना, अम, कौन सा गाना था मुझे याद नहीं आ रहा। इट वाज मोने पर डूबी रहा है, कौन सा किया था आपने? नहीं 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 नहीं। क्योंकि वो एक ही गाना मैंने रट्टा मारा हुआ था, हाँ, तो वही मैं याद करने की कोशिश आपने कर बहुत अच्छे से गा रहा के भी भेजा भी था मुझे ऑडियो में। था। वेरी नाइसली यूड सॉन्ग। हाँ तो रामदा সত্যি পাঠিয়েছে, एक এক্ষুনি बोल মনে दो। পড়ছে না, কিন্তু আমারও মনে পড়ছে না। আমি I could have helped him, but he had actually sung a beautiful song and he had sang ओके very सो फाइन, nice. आते ही सुनेंगे फिर। जैसे ही हाँ याद आए मुझे याद दिलाना हाँ कि हाँ, अविनाश। मैं अब चलो शुरू हो जाते हैं। चलो हाँ, मैं जैसे तैयार याद हूँ। आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो उसके हाँ बाद हाँ। दादा ने इतना हेल्प किया इस चीज में, और रिक्शा वाला के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था। उन्होंने एक रिक्शा वाला थे वहां पर जिनसे मुझे मिलाया, मैंने उनके साथ वक्त बिताया, उनके बारे में जाना। तो मैं शायद ये पर्सनली कभी अपने आप नहीं कर पाता ये चीजें में। और ये किरदार का जो इसकी लाइफ में जो बहुत सारे आर्क्स थे, एक फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड के साथ है, इसके अपने ड्रीम्स हैं। तो इस सबको इतना खूबसूरती से एक तो लिखा गया था, और दूसरा दादा के दिमाग में एक एक शॉट, एक एक चीज इतनी क्लियर थी। और उससे भी ऊपर मैं ये कहूंगा कि मैंने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और कई ऐसे डायरेक्टर के साथ भी काम किया है कि बीच में लगा कि अब ना किया जाए तो अच्छा है। बट दादा का जो काम नेचर था, मतलब हम डरे हुए हैं कि यार अब पता नहीं शॉट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बारिश हो गई, लाइट चली गई, बट ही वॉज सो काम एज अ डायरेक्टर। एंड द जो पूरी टीम थी, उसको देख के ये लग रहा था कि ये सबका पहला प्रोजेक्ट है, जबकि नहीं था। दे वर सो एक्साइटेड। एक्चुअली उस वजह से मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया। तो हम सब बच्चों की तरह काम कर रहे थे, जैसे बच्चे क्यूरियोसिटी के साथ काम करते हैं। आई थिंक वो एक पूरी टीम की बैकबोन थी, वो क्यूरियोसिटी, वो एक्साइटमेंट। Yes, yes, ओ, yes. Because Auritro and Gaurav, Sharbani was in Bombay, but she was still constantly on phone. Then Shoykot and Shaunet and Anirban, uh, lovely team. I mean, they were all running around और पसीने में लत-पत और कुछ भी नहीं, मतलब कोई लग्जरी नहीं किसी के लिए। बट या देवर ऑल वेरी, जो अविनाश कह रहा है कि वो सही कह रहा है, कि देख के लगेगा कि सबकी पहली फिल्म है। हालांकि सब एक्सपीरियंस है और सबने पहले काम किए हैं फिल्मों में, और उन सबको लगा कि नहीं, ये फिल्म ऐसे ही बननी चाहिए। और मेरा सब एक एक और चीज, अविनाश हमेशा आके मुझे शॉट के बाद आके पूछता था, दादा एक और टेक दूं, एक और अटेम्प्ट करूं? तो मैं बोलता था नहीं नहीं, आई हैव गॉट इट, इट्स ओके। तो शुरू शुरू में अविनाश को ये लगता था कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी, मतलब बोलते ही नहीं है डायरेक्टर, तो कुछ डांटते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, रीटेक भी नहीं लेते हैं। बट एक्चुअली बिकॉज ही वाज सो वेल प्रिपेयर्ड और इसने वर्कशॉप किया है ना, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। क्या इतना रीडिंग्स, इतना वर्कशॉप, इतना करने के, तो एक्चुअली शूटिंग के दिन we used to save time and used to give takes like this, which he forgot, कि उसको लगा कि नहीं और बेहतर हो सकता है और हो सकता है। बट एक डायरेक्टर के लिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मुझे शॉट मिल गया है ना, तो बेहतर होने के चक्कर में आप उसी सीन पे लगे रहते हो, और फिर बाकी आपका जो फिल्म छूट जाता है हाथ से, या बैलेंस चला जाता है। इफ आई एम टेकिंग अ वेरी शॉट ऑफ एन एक्टर हु इज डूइंग इट वेरी इम्प्रॉम्प्टू, जो नेचुरल परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको अगर मैं बार बार करवा के उसको ज्यादा परफेक्ट करा दूं, तो मुझे हर सीन पे उसको 10 टेक रीटेक लेने पड़ेंगे। फिर वो ओवरऑल फिल्म में उसका जो स्मूथनेस है वो चला जाता है, जो सीमलेसनेस होता है वो चला जाता है। तो इसीलिए मैं हर एक्टर को
छूट देता हूँ, लेकिन उतना ही जहां तक मुझे लगता है कि मुझे मिल गया है और एडिट टेबल पे ये ऐसा लगेगा, मैं बोलता हूँ नहीं, आपको और ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट्स हाउ हम हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो 7 दिन हमने जो शूटिंग किया उसमें जो हमारा जो एक बॉन्डिंग बना, वो काम करते करते बना, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो न्यू, ही वॉज ऑल्सो, ही इज नेवर वर्कड विथ मी, सो ही डिडंट नो हाउ आई फंक्शन। ओके। अविनाश, अब बताओ, ये कहानी कुछ अलग है, मतलब इसमें जर्नी तो है, ड्रीम्स भी है, और साथ में कुछ ना पाने की चाहत भी है, मतलब आप सोचते हो ये चाहिए वो चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, मतलब अच्छी जॉब भी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी अपनी निजी जिंदगी में कभी कुछ हुआ है जिसके साथ आप खुद कनेक्ट कर पाओ इस कैरेक्टर को और खुद को? मुझे लगता है इस कैरेक्टर के साथ दुनिया का कोई भी आदमी कनेक्ट कर सकता है, बिकॉज ये हर आम आदमी की कहानी है, सिर्फ प्रोफेशन अलग है इसका जो हमने चुना है, क्योंकि इसमें वो अपनी बेसिक नीड के लिए लड़ रहा है, वो अपने प्यार के लिए लड़ रहा है, वो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, और ये हर इंसान की कहानी है। तो मैं इसीलिए कनेक्ट हो पाया, इसलिए नहीं कि मैं अलग हूं, क्योंकि मैं सब में से एक हूं और मैं भी इसके थ्रू होके निकला हूं। बेसिक नीड्स के लिए, यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, यू लव समबडी बट बात नहीं बन रही है टाइप्स, एंड बाद में बन जाती है। सो आई थिंक इस कहानी में शायद इसीलिए कहानी लोगों को इतनी पसंद आ रही है, क्योंकि इसमें एक हर आम आदमी के बारे में ये कहती है, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे ये हर किसी की कहानी है, मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके ओके। और रामदा, मतलब शूटिंग के दौरान की कहानी तो हम लोगों ने सुन ली, लेकिन शूटिंग के बाद, मतलब जब आप एडिट टेबल पे पहुंचे, ऐसा कभी हुआ है कि काश अगर मैं ये शॉट को दोबारा से फिर कहीं और लेके, मतलब ले लिया होता तो अच्छा होता, काश इसको इस हिसाब से गाने को मतलब कुछ और हटके इस हिसाब से शूट करता तो ज्यादा अच्छा होता? गाने बहुत अच्छे हैं वैसे भी, मैं बता दूं फिल्म मैं देख चुका हूँ और काफी अच्छी है फिल्म, कल रिलीज हो रही है तो प्लीज देखिए फिल्म को। हाँ, सो हाँ, जी नहीं, ओवर टू मुझे यू। जब एडिट टेबल पे ये फिल्म आई और मैंने जब ये फिल्म को फाइनल फर्स्ट कट जो बोलते हैं उसको लॉक किया, हाँ हाँ। मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि इसको रीशूट करना है या इसको हम ऐसे शूट कर सकते थे या वैसे शूट कर सकते थे। जिस तरीके से मुझे शूट करना होता है, मैं उसी तरीके से ही शूट करता हूँ। आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ माई शॉट्स और सीन्स। बट ये मुझे लगा था कि इस कहानी को, अभी ये कहानी उस तरह से बन गई थी तो ये बनी 50 मिनट की, इस फिल्म को हम एटलीस्ट 1.5 घंटे की फिल्म बना सकते थे। वो मुझे हम्म। बहुत बाद में लगा कि नहीं, वी कुड हैव मेड इट इनटू अ फीचर फिल्म। तो अभी एक फीचर फिल्म करना होगा अविनाश के साथ। अच्छा हुआ रिक्शा वाला 50 मिनट की बनाई, तो हाँ। अभी नेक्स्ट वील प्लान समथिंग एंड वील डू समथिंग विद अ फीचर फिल्म, प्योरली बिकॉज आई वाज overwhelmed with this performance, and Kasturi and Sangeeta, everybody. I mean, it is unfair to say that only Avinash is good। पूरी मूवी में इनफैक्ट छोटे छोटे किरदार में जो मनी लेंडर है विश्वजीत, आई थिंक ही इज फैंटास्टिक। उनका जो सीन्स है उनके घर में आके जो डराना, फिर पैसा एग्जैक्टली। वसूल करना, वो सारे सीन में he's a very good actor, and I'm thankful to my associate director Shoykot for introducing me to Vishwajit, because he introduced me to an actor like him, and I think he's a theater actor, and he's really 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 good। So वो बहुत अच्छा है। एंड इस फिल्म में काफी हद तक जिसका मैं बोलूंगा कि इम्पोर्टेंट प्ले रोल प्ले किया है वो है मधुरा पालित, जो मेरा डीओपी है, जो इस हाँ। मधुरा कान से जस्ट वापस आई थी और हमने ये डिस्कस किया था, एंड इमीडिएटली शी सेड दैट यस रामदा, लेट्स डू दिस फिल्म। और अविनाश भी इस पूरी चीज का एक विटनेस रहा है कि कैसे मधुरा ने कैसे कंसीव किया और कैसे ये जो हालात माहौल था, बारिश धूप या जो भी हो, कहीं कुछ चीज से नहीं डरी। वो बेझिझक पूरा फिल्म को शूट किया और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से जो लुक एंड फील जो आया है। आई वुड ऑल्सो गिव क्रेडिट टू मधुरा, आई वुड गिव क्रेडिट टू माई एडिटर प्रणय दास गुप्ता, जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से इसको फिल्म को एडिट करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। तो ये फिल्म सिर्फ निर्देशक का श्रेय नहीं होता है, निर्देशक का क्रेडिट सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि निर्देशक इज जस्ट द कैप्टन ऑफ द शिप, बट
छोटे सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक डायरेक्टर ही जानता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है म्यूजिक. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू इग्नोर द म्यूजिक बिकॉज नीराजन शाह who met with a major accident. मतलब ये म्यूजिक और जो गाना गाया है कृषाणु बैनर्जी ने, तो एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर मेट विद अ मेजर एक्सीडेंट. ट्रक एक्सीडेंट हो गया शूटिंग के दौरान, शूटिंग के पहले, और उनके पैर की हड्डी के 100 टुकड़े हुए. 100, it was broken into 100 pieces. So we were in the, तो जो औरित्रो जो प्रोड्यूसर है वो बोले रामदा क्या करें, इनको रखे रिप्लेस करें. ऐसे बिल्कुल इस हालत में हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इन्हीं के साथ काम करेंगे. तो आई यूज्ड टू ट्रैवल टू हिज हाउस which was 2.5 hours or 3 hours from my house in Calcutta. So I used to travel all the way beyond the city to his house, sit with him with his bandaged and steel rod लगे हुए थे पैर पे, उनके क्रच पे थे वो. उनके साथ बैठ बैठ के हम लोगों ने उनके स्टूडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया है, गाना कंपोज किया है, और इस तरह से ये फिल्म को बनाया है. मैंने किसी भी टीम मेंबर को बीच राह पे नहीं छोड़ दिया कि एक्सीडेंट हो गया तो फिर चेंज कर दो, बिकॉज ही वॉज वेरी एंथुसियास्टिक, ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं ये फिल्म करूं. उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी था. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उनके पास पहुंच जाना चाहिए. जब वो ठीक हो जाएंगे तो नेक्स्ट फिल्म के लिए शायद वो मेरे स्टूडियो में आ जाए और वो मुझे मिलने आ जाए. लेकिन अभी वो नहीं आ सकते तो मुझे उनके पास जाना चाहिए. So I supported as much as I could to my entire team. Wow, such a lovely thought. And अविनाश, संभावना फिल्म देखी क्या? आपकी बीवी ने फिल्म देखी? नहीं, मेरी बीवी ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है. बीवी ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, और कल वो देखेगी. तो मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि वो सच बोल देती है. हाँ, तो अच्छा. वो एकदम सच बोलती है, क्योंकि उसको मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, अब शादी हो चुकी है. तो मतलब शादी होने का मतलब क्या है? शादी होगी तो इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, ये क्या बात हुई अविनाश? नहीं, इम्प्रेस इन द सेंस कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठे तरीके से इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है कि अरे वाह, चढ़ाने की जरूरत नहीं है चने के झाड़ पे. तो आई एम रियली एक्साइटेड, और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड वो है. और कल वो फिल्म देखेगी तो मैं तो सिर्फ उसका चेहरा देखूंगा जितनी देर वो फिल्म देखेगी. तो उसके रिएक्शंस क्या हैं, और एंड आई वांट टू नो. बट ट्रेलर उसको बहुत पसंद आया, और छोटी छोटी चीजें, कहानी तो उसको पता है क्या है, क्योंकि स्क्रिप्ट मेरे पास थी तो मैंने बताया था. तो अभी तक तो उसको बहुत पसंद आई है फिल्म, और आई एम श्योर ट्रेलर पसंद आया और फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी. ओके, सो अगली फिल्म में क्या हम एक साथ अविनाश और संभावना को एक साथ देख पाएंगे किसी भी फिल्म में? क्या पता रामदा कास्ट कर, या कुछ ऐसा कुछ है दिमाग में चल रहा है? काफी रील्स तो बनते हैं, देखा है, काफी ब्लॉग्स भी बनते हैं एक दोनों के साथ साथ, काफी कुछ है. सो आगे इरादा क्या है जनाब आपके? जरा सुनाइए हमें. अब ये जो इरादा है ये पूरी तरह से डायरेक्टर पे निर्भर करता है. तो Yeah, I would love to work with संभावना and अविनाश together. संभावना ने तो मुझसे व्लॉग में वादा भी करवा लिया, तभी तो मुझे करना ही है. अच्छा, चलिए फिर अविनाश, मुझे आपको और संभावना को अलग से एक इंटरव्यू चाहिए. मिल रहा है ना मुझे? मैं लाइव पे, आप कंफर्म कर रहे हो तो फिर हाँ, मिल रहा है ना मुझे? आज के इंटरव्यू के बाद और एक इंटरव्यू आपका और संभावना का एक साथ, पोस्ट द रिलीज ऑफ रिक्शावाला. पोस्ट द रिलीज ऑफ रिक्शावाला और दादा का प्रॉमिस फिल्म करने का. वो तो दादा बता देंगे, मैं थोड़ी ना दादा को बोल सकता हूँ कि आप लो 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 लो. लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 20 ऑडियो में आपको और संभावना को एक साथ चाहिए मुझे लाइव में. मिल रहा है ना मुझे? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है. बिल्कुल ना, ठीक है, चलो फिर. बहुत टांग खिंचाई होगी. अविनाश सोचा ये बंदा ऐसे मिल रहा हूँ पहली बार, और ये बंदा बहुत देर से टांग खिंचाई. संभावना is a sweetheart and she's a lady who is with the heart of gold. तो आप जब बात करोगे, जब मिलोगे अविनाश, अरुणव, तब आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. कि ऐसे इंसान आज की तारीख में मिलना बहुत मुश्किल है, जो जुबान पे, जो दिल पे जो है वही जुबान पे है उनका. तो ऐसा वो किसी को अगर पसंद नहीं आता है तो साफ बोल देती है पसंद नहीं आया, पसंद आया तो साफ बोल देती है पसंद आया है. जैसा है वैसा है उनके सामने. उनको कपटी छल कुछ ऐसा नहीं है. तो इसीलिए उनके दोस्त बहुत कम हैं, बहुत ही कम. और लेकिन जितने सारे दोस्त हैं वो सब असली दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं. तो दैट इज संभावना. तो अगर आप कभी मिलोगे तो आपको समझ में आएगा.
हाँ, कोलकाता में आई थी, किसी एक फिल्म की शूटिंग के लिए आई थी, किसी आइटम सॉन्ग के लिए। सो काफी साल मतलब पुरानी है ये कहानी, लेकिन मतलब इंटरव्यू नहीं मिल पाई, शायद कुछ हुआ था। सो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं मिली, तो बस फिर मैं भाग गया था ऑफिस अपना। बस यही कहानी है, और कुछ नहीं। अच्छा, आप ये बताओ अविनाश की मतलब फिल्म कल आ रही है, आप अपने दर्शकों से क्या कहोगे? रामदा, তুমি কি বলবে কালকে ছবিটা আসছে, আমরা একদম শেষে চলে এসেছি। সো व्हाट यू वांट टू से? मैं यही पहले कहूंगा कि अविनाश बोल रहे हैं। ঠিক আছে, হ্যাঁ। ये मैं यही कहूंगा कि बहुत कम कहानियां होती हैं जो आपको प्रभावित भी करती हैं और आपको अंदर से पूरा मूव करती हैं, और रिक्शा वाला उन कहानियों में से है। इसमें ये फिल्म में गहराई है, एक शैलो फिल्म नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। तो इस फिल्म से आप कुछ ना कुछ अपने लिए भी लेके जरूर जाओगे, क्योंकि इस फिल्म में हमने बहुत मेहनत की है, और इसीलिए मेहनत की है क्योंकि इस फिल्म में हम सबको कुछ दिखा, और इसीलिए शायद एक ऐसी टीम बन पाई जो कि एक टीम, एक फैमिली की तरह थी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिल्म को आप जरूर देखें, और अगर पसंद आए तो आगे भी इसको लोगों को रिकमेंड करें देखने के लिए। और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग निराश नहीं होंगे फिल्म देख के, ये तो पक्की बात है। हाँ, ये पक्की है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। जी सही कहा रामदा। अविनाश ने जो कहा, मेरा भी वही कहना है कि मैं बांग्ला में कहता हूँ, क्योंकि ये আমি এই শোটা ম্যাক্সিমাম লোকেরা কলকাতায় দেখছে, তো আপনারা প্লিজ রিক্সাওয়ালা দেখুন, বিগ ব্যাং অ্যামিউজমেন্টের। এটা মাত্র 11 টাকায় আপনারা সারা বছর নানান ছবি দেখতে পারবেন। এটার সাবস্ক্রিপশন মাত্র 11 টাকা। আমার মনে হয় 11 টাকায় এখন ঝালমুড়িও পাওয়া যায় না বোধহয় কলকাতাতে। তো 11 টাকাতে যদি সারা বছর আপনারা ছবি দেখতে পারবেন, এটা এই প্ল্যাটফর্মে অনেক নতুন কন্টেন্ট, মিনি ওয়েব সিরিজ, ভালো ভালো ছবি সব আসছে, কিন্তু আমরা প্রিমিয়ার করতে চলেছি রিক্সাওয়ালা বিগ ব্যাং এ। অ্যান্ড ইটস আ ভেরি প্যাশনেট ফিল্ম, ইটস আ ট্রিবিউট টু লেজেন্ডারি অ্যাক্টর ওম পুরী। আর ওম পুরীর সঙ্গে কলকাতার একটা ভীষণ ভালো সম্পর্ক, শুধু অভিনেতা হিসেবেই নয়, উনি উনি কলকাতার জামাইও। কারণ হি ওয়াজ ম্যারিড টু নন্দিতা পুরী, অ্যান্ড নন্দিতা জি ইজ আ বাঙালি, and she supported a lot under Om Puri Foundation. And so I would request everybody with folded hands that बहुत प्यार से, बहुत कष्ट से ये फिल्म बनाया है। तो আপনারা সবাই ফিল্মটা প্লিজ দেখুন, কারণ এই জন্য প্ল্যাটফর্মের যে সাবস্ক্রিপশন রেট আছে সেটাও একদম বেসিক মিনিমাম রাখা হয়েছে, যাতে আমরা চাই বেশি সংখ্যক দর্শকরা, বেশি লোকেরা যেন গিয়ে এই ফিল্মটা দেখতে পারে। তো আমরা চাইবো যে অরুণাভ, তুমিও তোমার চ্যানেলের থ্রু দিয়ে, তোমার তোমার রিচ দিয়ে, তোমার ফ্যান বেস দিয়ে যদি যত বলতে পারো, যত লোকে দেখাতে পারো ছবিটা, as a filmmaker, as a team, we'll be very grateful and to you and your entire subscribers. ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি উইল ডু যতটা সম্ভব। কারণ আমি সবসময় বলে এসেছি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার্স, ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্টকে সবসময় সাপোর্ট করুন। এটা মিউজিক হতে পারে, ফিল্ম হতে পারে, যে কোনো কিছু, যে কোনো ইন্ডিজিনাস অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্ট অফকোর্স ডু সাপোর্ট। রামদা, তোমার নতুন কি প্রজেক্ট আসছে সেটা সম্পর্কে একটু বলো, দেন আমার অবিনাশের থেকেও জানার আছে একটু করে, কারণ একদম শেষে চলে এসেছি। তোমার नतून की न्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट আসছে? मतलब रिक्शावाला के साथ साथ मेरा दूसरा फिल्म ब्रोकन फ्रेम भी रिलीज होगा, वो जुलाई में रिलीज होगा। ब्रोकन फ्रेम इज ऑल अबाउट you know, because you've come for the book launch, so I don't have to tell you separately what is it. It is a part of Long and an Iced Tea, which is a book which was launched in Calcutta. 8 short stories थे उसमें, उसमें से जो पहली कहानी है ब्रोकन फ्रेम, अमित और मौसमी की कहानी, तो वो ब्रोकन फ्रेम है, जिसमें रीता भोरी और रोहित बोस रॉय ने परफॉर्म किया है। और इस फिल्म को भी काफी फेस्टिवल में अभी हमने भेजना शुरू किया, तो इसको भी सराहा जा रहा है थैंकफुली। तो ये जुलाई में बिग बैंग में आएगा, और ये मेरा नेक्स्ट रिलीज है। एंड आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव दैट पीपल विल डेफिनेटली लाइक ब्रोकन फ्रेम as much as they have liked Cakewalk, Seasons Greeting and Rickshaw. सो आई एम श्योर कि आप दोबारा कोलकाता आ रहे हो फिल्म की प्रमोशंस के लिए, और दोनों सेलिब्रिटीज को कोलकाता में साथ में ला रहे हो, और मुझे एक्सक्लूसिव मिल रहा है, यानी, है ना? अगर लॉकडाउन खुल जाता है और सबको आने के लिए परमिशन मिल जाता है, तो हम लोग बिल्कुल कलकत्ता आएंगे और आपको भी मिलेगा एक्सक्लूसिव। पर फिलहाल अगर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग फिर इसी जूम जैसे चैट में आके हम लोग फिर बातें करें। कूल। और अविनाश, आपकी आने वाली क्या मतलब फिल्में हैं? फिल्में तो वैसे भी आप कर चुके हो, पहली फिल्म 2016 में की आपने, फिर उसके बाद कई सारे शॉर्ट फिल्म्स, फिर
वेब सीरीज में आए और इस बार फिर से दोबारा एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ रिक्शा वाला। सब आगे और क्या है? एक और फीचर फिल्म है जो कि शूट हो चुकी है और इट इज रेडी टू रिलीज इन द एंड ऑफ दिस ईयर। इट्स एन OTT फिल्म एंड इट्स अ वेरी गुड फिल्म। सो और इसके अलावा आई हैव लॉट ऑफ ऑफर्स, बट अभी तक कुछ पे बात चल रही है, कुछ पे बात बीच में, कुछ पे बात बन चुकी है। ऑल थैंक्स टू रिक्शा वाला, because of rickshaw wala I got so many offers that I can't tell you. That's great. है ही ऐसा, जिनके साथ काम के मैं बोला ना, होता ही ऐसा। सो एक बार चस्का, मतलब काम कर लिए ना, उसका चस्का कभी नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला, उसका रंग उतरेगा नहीं कभी, है ना? ओके, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट, वी आर जस्ट अबाउट टू रैप इट अप। और बिफोर दैट ये बता दो आप दोनों मिलकर कि कैसा लगा ये फुल इंटरेक्शन मेरे साथ, और वो भी 20 पर के साथ इस कदर पहली बार वर्चुअल इंटरेक्शन में। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर? इट वाज लवली टॉकिंग टू यू अर्नव, एंड मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मैं किसी इंटरव्यूअर से नहीं, किसी दोस्त से ही चैट कर रहा हूँ, जैसे हम अपने दूर बैठे दोस्त से जूम कॉल पे चैट करते हैं। मैं दिल्ली में अपने दोस्तों से बात करता हूँ, सो आई डिडंट फील लाइक आई एम गिविंग अ इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। অরুণাভ, নতুন করে আর কিছু বলার নেই, অলরেডি বলে দিয়েছি যে ইউ আর আ ভেরি পজিটিভ পারসন। একটু বলো না প্লিজ, তুমি একটু বলো প্লিজ, তুমি ওরকম করো না, তুমি প্লিজ বলো, খুব ভালো লাগে শুনতে, একটু বলো। You are a very positive person, Arunam, and your smile is very infectious. And whenever I have interacted with you, I've always, went back with lots of energy, because you imbibe energy in others, just like how your smile does a lot of magic to a lot of people. And stay positive, keep doing good stuff, keep promoting independent filmmakers, independent music directors, actors, and ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहिए और लोगों को रुझाते रहिए और सबका एंटरटेनमेंट करते रहिए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, वैक्सीनेशन आपने लिया होगा, दूसरा डोज भी ले लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू। Yes, और इसी के साथ me your host Arnav will wrap it up our interaction for today. Yes, কালকে আবার কি থাকছে সেটা জানতে হলো, কালকেও কিন্তু দুটো লাইভ থাকছে, 3টে এবং বিকেল 5টায় দুটো স্লটে লাইভ থাকছে। সো কি থাকছে, কে থাকছে, কি নিয়ে লাইভ থাকছে সেটা জানতে হলে অবশ্যই ডু ফলো এন্ড সাবস্ক্রাইব বি স্পট ইউ, ফেসবুক, ইনস্টা এন্ড ইউটিউব। বড় একটা পরিবার, তো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে পাশে থাকার জন্য। এন্ড অফকোর্স কালকে কিন্তু আসছে রিক্সাওয়ালা বিগ ব্যাং এ। Download the app and then you watch, like, share and comment. It's very important. আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, ভালো থেকো, and আবারও নিশ্চয়ই সামনাসামনি বসে আড্ডা হবে। রামদা, and thank you Avinash for giving us a valuable time. Thank you and best wishes to both of you. Thank you Avinash. Thank you so much. Thank you Dada. Bye. Bye.